Thank you all for joining us at such a short notice. Management Principles from Bhagavad Gita is a very well-known program in corporates. A lot of companies we are doing this kind of a program. Automobile sector में, telecom sector में, pharma में, service में, education में, wherever you say we are doing this kind of a program, and program is taken with a lot of enthusiasm. मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज. Management Principles from Bhagavad Gita is actually solving all kinds of corporate problems today you can actually see and actually come across. Today, 82% employees are disengaged employees in today's corporate world. 90% are passengers, only 10% are drivers. Only 10% employees are doing 90% of business, and 90% employees are not even contributing to 10% of the main business. ऑर्गेनाइजेशन टर्मोइल से बीत रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड अच्छा नहीं चल रहा, इंडस्ट्री लो चल रही है, मार्केट लो चल रही है, और ऐसे सिचुएशन के अंदर लॉट ऑफ एम्प्लॉइज आर देयर जो कहते हैं 2 बार पंच 1 बार लंच, लाइफ है टच. These are those employees who are enjoying the organization and actually not working very well. So the HR is in a turmoil. They think कि करें तो क्या करें, कैसे इस टैलेंट को रिटेन करें, कैसे नए टैलेंट को अट्रैक्ट करें, कैसे टैलेंट को एंगेज करें, कैसे टैलेंट को रिटेन करें, कैसे टैलेंट को अट्रैक्ट करें और कैसे टैलेंट को एंगेज करें. So this is what, understanding the today's challenges and the crisis and the concerns in the corporate world, we had come up with this powerful program. Now today, emotional intelligence, Daniel Goleman is called as grandfather of emotional intelligence world over. He's from USFAs, and actually can I tell you frankly, entire emotional intelligence in chapter 6 of Bhagavad Gita. Chapter 6 of Bhagavad Gita is about art of mind control, is about stress management, is about engaging the mind. कृष्ण बताते हैं यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियमेतद आत्मनि एव वशम नयेत. यतो यतो ततो ततो, जहां जहां वहां वहां, जहां जहां मन जाएगा वहां वहां से वापस आना है. दिस इज कॉल्ड एंगेजिंग द माइंड. एंड व्हेन you see, you don't have to gauge your mind, you have to engage your mind. You don't have to gauge your employees, you have to engage your employees. When your mentality is good, your reality is good. आपकी मनस्थिति ठीक होगी तो आपकी परिस्थिति ठीक होगी. This is what Krishna is actually focusing on Bhagavad Gita in chapter 6. तो आज what we can do is, at least we can respect the Western motivational books, but also understand the roots that we have are powerful enough to give us all the wisdom. Let us wait and celebrate this Gita Jayanti day in remembering the first motivational speaker on the planet Earth was Lord Krishna, who spoke this Bhagavad Gita message in the battlefield. देखिए, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब पत्रकार लोग हैं, अच्छे अखबारों टेलीविजन से हैं. इसके अलावा ये जितने भी लोग हम लोग यहाँ पे हैं, हर एक के जीवन में एक अपना युद्ध है, हर एक का एक अपना बैटल है. बाइबल तो अगर आप उठाएं तो बाइबल में आप देखते हैं कितना डिस्कशन हो रहा है कि एज यू थिंक इट सो यू बिकम इट. I'll say that again. As you think it, so you become it. बाइबल में कहा गया है as you think it, so you become it. Similarly, कृष्ण भी कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजतन्ते कलेवरम् तम तम वैदि कौन्ते हेया सदा तद्भाव भाविता. यम यम तम तम, जैसा जैसा वैसा वैसा, यम यम वापि स्मरन् भावम्, जैसा जैसा स्मरण भाव होगा तो वैसा वैसा बनता जाएगा. जैसा जैसा स्मरण भाव होगा तो वैसा वैसा बनता जाएगा. तो आपके संस्कार से आता है विचार, विचार से बनता है व्यवहार, व्यवहार से आता है आचार, आचार से बढ़ता है प्रचार, और अच्छा होगा प्रचार तभी बढ़िया होगा आपका व्यापार. आज व्यापार कॉर्पोरेट वर्ल्ड बढ़िया करना चाहता है, लेकिन उस व्यापार को बढ़िया करने के लिए हम लोग उनका संस्कार और विचार बढ़िया करना चाहते हैं. आपका संस्कार और विचार अच्छा हो जाता है तो आपके व्यापार को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है. तो ये जो है मेंटालिटी इंप्रूव्स द रियलिटी, योर बैकग्राउंड इंप्रूव्स द फोरग्राउंड, योर रूट्स विल इंप्रूव द फ्रूट, योर इंटेंट विल इंप्रूव योर कंटेंट. तो हम लोग, योर क्रेडिबिलिटी विल इंप्रूव योर प्रॉफिटेबिलिटी. पीपल आर वर्किंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, वो क्रेडिबिलिटी पर काम नहीं कर रहे हैं. जिस दिन क्रेडिबिलिटी ठीक होगा प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप ठीक हो जाएगा. जिस दिन रूट्स ठीक हो गए फ्रूट्स अपने आप ठीक हो जाएंगे. जिस दिन मानसिकता ठीक हो गई वास्तविकता अपने आप ठीक हो जाएगी. भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है वो संजय ने कहा है. मैं आपको बताना चाहता हूं भगवत गीता में 700 श्लोक हैं. ये 48 मिनट की चर्चा थी जिसमें 4 पार्टिसिपेंट हैं और इसके अंदर कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र हैं. 700 में से 574 श्लोक कृष्ण ने कहे हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 41 संजय और 1 धृतराष्ट्र ने. ये FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण उत्तर दे रहे हैं. बहुत क्राइसिस है इस समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने वाले लोग नहीं हैं. प्रश्नों के उत्तर देने वाले आज मैनेजमेंट लीडर रोज नई फिलॉसफी इवॉल्व कर रहे हैं, पर भगवत गीता इज बियॉन्ड टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस. ये समय काल और परिस्थिति के परे है. कोई भी टाइम, कोई भी प्लेस, कोई भी सर्कमस्टांस, कोई भी स्थान हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी इस तरह से भगवत गीता एक प्रिंसिपल है.
प्रिंसिपल का अर्थ वो जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ये भी एक प्रिंसिपल है। किसी बच्चे को भी धक्का दे दें छत से, ग्रेविटी उनको भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेविटी एक प्रिंसिपल है। ग्रेविटी सभी जगह सभी लोगों के लिए समान रूप से एप्लीकेबल है। ग्रेविटी हर देश में एप्लीकेबल है, हर रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है। सहिष्णुता, असहिष्णुता, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है अगर हम प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं तो टॉलरेंस इंटॉलरेंस की डिबेट समाप्त हो जाती है। आज ये प्रिंसिपल्स की मदद से ग्लोबल एड ग्रो कर रहा है। आज हमने जो वेंचर शुरू किया, ठीक 4 साल पहले शुरू किया था, अगले साल के अंत तक हम लोग लगभग 100 करोड़ का बिजनेस हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं, अचीव करने जा रहे हैं। हमारी खास बात यह है कि सारे के सारे कॉर्पोरेट्स हमें रिटेन कर लेते हैं। आज तक हमारे एक भी क्लाइंट ने हमें छोड़ा नहीं, एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं था जिसने हमारा साथ छोड़ा हो। जहां हमने एक प्रोग्राम किया, ऐसा प्रभाव हो जाता है तो हम लोग प्रभावित नहीं करते हैं, प्रभु भावित करते हैं लोगों को। जब वो उनके पास प्रभु भावित होने के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं तो प्रभावित वो नेचुरली हो जाते हैं। जब वो फ्रूट के लिए काम करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं फ्रूट पे फोकस ना करें, रूट पे फोकस करें। कारण के पीछे का कारण कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। लोग कारण को ठीक करना चाहते हैं कि आज उमंग जी हो सकता है अपनी कंपनी व्योम नेटवर्क्स टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी है, ये पूछें अपनी टीम से, मार्केटिंग की, सेल्स की, उनसे पूछें कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या टारगेट से अचीव हुए नहीं हुए, तो बोलते हैं कि साहब यही कारण है, इसके कारण ठीक नहीं हुआ। तो हम कॉर्पोरेट्स में क्या करते हैं, कारण के पीछे का कारण ढूंढते हैं, रीजन बिहाइंड द रीजन आइडेंटिफाई करते हैं, कॉज बिहाइंड द कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। कृष्ण ने साइकोमेट्रिक एनालिसिस दिया है गीता में अर्जुन को कि अर्जुन अगर किसी व्यक्ति की मानसिकता समझनी है तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस ऐसे किया जाए।